Hello everyone, welcome back to the Maths Zone. Today's special guest is Mrs. Allam. Hello, Khush Amdeed. A very warm welcome to you. Today we're going to play a game called 1 to 12 Cross Them Out. आज जो हम गेम खेलने लगे हैं उसका नाम है 1 से लेके 12 तक Cross Them Out, which means कि जो नंबर आपका आता जाए उसको आप क्रॉस आउट कर दें, काट दें. Right, so for this game you're going to need a piece of paper each, 2 dice and a pen. इस गेम को खेलने के लिए आपको पीस ऑफ पेपर चाहिए होगा, एक कागज़ का पीस दोनों बंदों के लिए, 2 डाइस और एक पेन. With the piece of paper you've got to divide it into 12 equal boxes and then write the numbers from 1 to 12. One number in each box, like this. इस गेम के लिए आपको इस कागज़ को 12 हिस्सों में तकसीम करना होगा जिनका साइज बिल्कुल एक जैसा होगा, एक जैसे वो 12 हिस्से होंगे और 1 से लेके 12 तक उसके ऊपर आप गिनती लिखेंगे हर खाने के अंदर. I think that we're agreed that we'd be just equally as happy to be written in Urdu as in English. If you were playing purely for mathematical reasons, you might want to do it in Urdu. If you wanted to help develop some vocabulary by learning the English numbers, then you might want to just use the English numbers. But either's good. हम लोगों ने डिसाइड करा कि हम एक पेपर के ऊपर अंग्रेजी में मैथ्स के नंबर्स लिखेंगे और एक कागज़ के ऊपर उर्दू में रियाजी के हिंसे लिखेंगे, ताकि अगर आप अपनी लैंग्वेज डेवलप कर रहे हैं तो आपके लिए इजी है कि दोनों में कौन से हिंसे कहाँ पर हैं और कौन से हैं. So the aim of the game is to throw the 2 dice, and with the 2 numbers that you get, you can use any one of the 4 operations. You can add, take away, multiply or divide to try and get one of the numbers on your piece of paper, and then you can cross it out. तो गेम का रूल ये है कि आप डाइस अपने जो 2 डाइस हैं उनको रोल आउट करेंगे, उनको फेंकेंगे और आपका जो 2 नंबर आएंगे उन 2 नंबर्स को या आप तकसीम कर सकते हैं यानी कि डिवाइड, या आप ज़रब दे सकते हैं यानी कि मल्टीप्लाई, उनको नफ़ी कर सकते हैं यानी कि माइनस कर सकते हैं, या उनको जमा कर सकते हैं उन 2 नंबर्स को. Okay, are we sort of ready to start? Yeah, let's go. Would you like to go first? I'd like you to have a go. Okay, please. thank you. Right, so I'll start. So I roll the 2 dice. I've got a 5 and a 3. I can't multiply them because 5 times 3 is 15, and I haven't got 15 on my chart, but I could add them. So 5 and 3 to get 8, or I could take 3 away from 5 and get 2. I think I'm going to add them to make a total of 8, so I can cross off the 8 and only cross off one number on my go. Okay, everybody here? मेरे नंबर आए हैं 4 और 3, जिनको अगर मैं जमा करूं तो वो 7 होगा, अगर मैं 4 में से 3 निकालूं तो वो 1 होगा, जो कि मैं कर लूँगी बिकॉज 1 बहुत मुश्किल से आएगा. आपकी बारी, go. Can I ask you which number you chose to cross off? I chosen 1 to cross off because I have subtracted 3 from 4. Okay. This number is 1, which is similar to the number 1 here. All right, lovely. Okay, thank you. So I've got a 3 and a 1. I'm probably going to take 1 away from 3 and cross off my 2. So I've now got rid of 2 of my numbers. इनका नंबर आया था 3 और 1 और उन्होंने 1 में से 3 को तफरीक दी और जिसका जवाब था 2, तो उन्होंने 2 क्रॉस आउट करा. अब मेरी बारी है और मेरा आया है 6 और 1 7, जिसको अगर मैं जमा करूं ऑब्वियसली 7 होगा, और अगर मैं तफरीक करूं यानी कि निकालूं, सब्ट्रैक्ट करूं तो वो 5 होगा. तो मैं 5 निकालूंगी. I had 6 and 1, which I've taken 1 away from 6 and I've taken my 5 out. Lovely, okay. I've got a 3 and a 4. Now, I could take 3 away from 4 and take away 1, but another aspect of the game is to try and get rid of the numbers that are more difficult to actually get. So I'm going to times 3 by 4 to get rid of the 12.
मिस्टर डेविस का 4 and 3 आया था, जिसको वो जमा करते तो वो 7 भी हो सकता था, मगर उन्होंने डिसाइड करा कि 12 मुश्किल से आएगा, तो उन्होंने 4 से 3 को ज़रब दी, जिसका जवाब था 12, और उन्होंने 12 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, क्रॉस आउट कर दिया। मेरी बारी है और मेरा आया है 4 और 3, और मैं भी अब यही करूँगी, मैं भी 12 को निकालूंगी, 4 को 3 से ज़रब दूंगी और 12 को क्रॉस आउट करूँगी। I think we'll go for, if it's right with you, one more go each, and we won't finish the game, but hopefully we've explained enough for it to be okay to play. हम गेम दोनों एक बारी और लेंगे, और उसके बाद हम उम्मीद करते हैं कि आपको गेम इनफ समझ आ गया होगा अगर आपने घर पे अपने बच्चों के साथ खेलना है तो। Have a go. Okay, thank you. I've got another 4 and a 3, so I can't do the 12 because that's already gone. So I'll do 4 take away 3 is 1. So now I've got 4 of my numbers crossed out. मिस्टर डेविस का 4 और 3 आया था। लास्ट टाइम उन्होंने 4 से 3 को ज़रब दी थी, तो उनका जवाब 12 आया था, उन्होंने वो क्रॉस आउट करा। इस दफ़ा उन्होंने उसको उसमें से निकाल दिया, तफरीक कर दी, तो 1 आया। और अब मेरी बारी है और मेरा आया है 3 और 1, जो कि 4 भी हो सकता है अगर मैं जमा करूं, और 2 भी हो सकता है अगर मैं 1 से 3 को निकालूं। तो मैं 3 और 1, 4 को जमा कर लेती हूँ और 4 को काट देती हूँ। Okay, so the first person to cross out all of their numbers wins. जिस बंदे के सबसे पहले सारे नंबर क्रॉस आउट हो जाएंगे वो बंदा जीत जाएगा। दैट इज द एम ऑफ द गेम। इस गेम को खेलने का मकसद ये है कि जिसके सबसे ज़्यादा जिसके सब बॉक्सेस क्रॉस होंगे वो जीत जाएगा। If you throw 2 numbers and you can't cross out a number, then you just miss your go. अगर आपने नंबर फेंका, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने 3 और 1 दोबारा फेंका और मेरा 4 है, 2 भी हो सकता है, लेकिन अगर वो भी क्रॉस आउट हो गया है तो मेरी बारी काउंट नहीं होगी, गुल हो जाएगी और फिर इनकी बारी दोबारा आएगी। And I think probably the last thing to say is the game does get more exciting as you get fewer numbers and then they become harder to actually get. डेफिनेटली गेम बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाता है, बहुत ही मज़ेदार हो जाता है अगर आपके छोटे नंबर कट गए हैं या बड़े नंबर आपने हटा दिए हैं और फिर वही नंबर बार बार आए, तो आपकी बहुत सारी बारियां जो हैं वो मिस हो सकती हैं। बट इट्स दिलचस्प गेम है बच्चों से खेलने के लिए। Okay, thank you very much. Thanks a lot.